Today we are going to see a new chapter in surveying, unit number 3, that is compass survey. In this topic we will be seeing about what is compass survey, on which principle does it work, and the various definitions and various components used in compass survey. The content of the lecture are principle of compass survey, then we will be seeing bearing of lines, in that meridian, true, magnetic and arbitrary meridian. Then we will be seeing about bearing, what is fore bearing, back bearing, whole circle bearing, quadrantal bearing system, reduced bearing, conversion of bearing, finding included angle from bearing. So this all topic we are going to see in this video lecture. So first of all, the principle of compass survey. So what is principle of compass survey? Is traversing. So first of all we will know what is traversing, okay, then we will come to this slide. So traversing क्या है? Traversing है framework है. As we all know, the given diagram is given a closed traverse and open traverse. So closed traverse, what is closed traverse? From point A to point F are interconnected with each other. So you can easily find the length between AB, BC, CD and DE and EF and FA. So that is called as a closed traverse. And open traverse, there is no connection between point 1, 2 and point last. Okay, so with the help of compass, what we will do, we will measure the directions, okay, and with the help of chain and tape we will measure the length. That is known as a compass traversing. So let's come back to the topic. What principle of traversing? So we all know the principle of compass survey is traversing, which involves series of connected lines, as we have seen in traversing, series of connected line like from point A to point F and they are interconnected with each other. Okay, so prismatic compass क्या करता है, आपको उसका direction को बता देता है, और with the help of chain or tape we measure the distance. So where we will use compass survey? We will use compass survey where the areas are large, undulating and crowded with many details. So undulating क्या होता है? First of all we should know what is undulating. Undulating means irregular. The surface are irregular. There is a uneven, like buildings and the houses and hills and rivers. So undulating होता है. Crowded means overcrowded. We all know our population is much higher. So we can use compass survey to find the directions. Okay. Next is compass survey is not recommended for area where local attraction is suspected. So what is local attraction? As we all know. So for example, we all know about local attraction. So first, before saying that, I will take you to a compass. ये compass होता क्या है? So ये मेरे मोबाइल का compass है. So you can see my sitting position, where I am sitting. I am facing north. Okay, and my degree is 23 degree northeast. So my nearest pole is north, and I'm going towards it lies in first quadrant. Okay, so ये क्या है? हमारा compass है. Easily available. आपके फ़ोन में भी ये ऐप है, तो आप वहाँ से देख सकते हो. ठीक है, तो this is where local attraction is suspected. There will be a magnetic declination. Okay, so in that area we are not we should not use compass survey because there will be so much error. Okay, next we'll go to we have seen that. Then we will see bearing of lines. What is bearing of lines? We all know, as you can see in the diagram, here TN is given, that is true north, and the MN means magnetic north. We all know the four quadrants, that north, east, south and west. This is our earth. So north pole, south pole, east and west. So we all know what is pole and what is meridian, number of longitudinal which connects. ठीक है, तो जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं. तो ट्रू मेरिडियन क्या बोलेंगे? द लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ओके, ज्योग्राफिकल साउथ पोल एंड एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज ए ट्रू मेरिडियन, विच द लाइन पासिंग द किसको पास कर रहा है? ट्रू नॉर्थ पोल और ट्रू साउथ पोल को. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू मेरिडियन बोलते हैं. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम एंड यू कैन अंडरस्टैंड. ये पिक्चर में आप देख के समझ सकते हो कि मेरिडियन किसको बोलते हैं. मेरिडियन मीन्स नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइन्स, एज यू कैन सी दिस, एंड द सेंटर वन इज अ प्राइम मेरिडियन. ओके, सो दिस आर द बियरिंग्स. So in this diagram also you can see our earth latitude and longitude is given. So the 0 degree is equator and it is connected. Okay, so the prime meridian is the central part, which is facing the
geographical north pole and south pole. Okay, so that is true meridian. Next one is magnetic meridian. So what is magnetic meridian? When a magnetic needle is suspended freely, easily moved, the magnetic needle easily moved, as I have shown you in the picture. My direction was 21 degree northeast. So easily with the help of magnetic needle, magnetic meridian, you can find the direction, which direction you are facing. ठीक है, तो उससे आपको पता लग जाएगा. एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए. तो आप देखिएगा कि मेरा अभी जो डायरेक्शन है क्या है, 21 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, तो इससे मैग्नेटिक नीडल ईजिली फ्रीली मूव हो रहा है. बट अगर लोकल अट्रैक्शन रहेगा तो ज़्यादा एरर आने की चांसेस हो सकता है. ओके, सो दैट वाज मैग्नेटिक मेरिडियन. नेक्स्ट वन इज arbitrary meridian. What is arbitrary meridian? Let's see. Sometimes for a survey line for a small area, a convenient direction is assumed as a meridian. Like अगर आपको किसी चीज़ का स्मॉल एरिया का मेजरमेंट लेना है तो उसको हम लोग डायरेक्शन को अस्यूम करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी मेरिडियन बोलते हैं. ठीक है, तो इस यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या होता है. स्मॉल सर्वे लाइन, अगर पॉइंट ए टू पॉइंट बी को आपको मापना है, ठीक है, तो यू ऑल नो द डायरेक्शन. जब आप कॉम्पास रखोगे तो आसानी से आपको डायरेक्शन को बता देगा और ईजिली विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप यू कैन मेजर द लेंथ. ठीक है, तो ये उसको बोल सकते हैं आर्बिट्रेरी मेरिडियन. नेक्स्ट वन इज ग्रिड मेरिडियन. तो ग्रिड मेरिडियन क्या होता है देख लीजिएगा. समटाइम्स फॉर प्रिपेयरिंग ए मैप some state agencies assume several lines parallel to the true meridian. As you can see here, the center part, this latitude and longitude, this is latitude and this is longitude. Okay, and it is meridian, the central part is prime meridian. Okay, and the number of lines that is running parallel देख सकते हैं आप. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रिड. इट्स फॉर्मिंग ए चेन लाइक ऑल क्लोज rectangles are there. Though sometimes for preparing a map, some state agencies assume several lines parallel to true meridian for a particular zone, that is known as a grid lines, and central line is called as a grid meridian. तो जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिड मेरिडियन. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा कॉम्पास सर्वे का. नेक्स्ट है व्हाट इज बियरिंग. ओके, सो वी ऑल नो बियरिंग ऑफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंगल, वी ऑल नो. ठीक है, विच मेक्स विथ अ रेफरेंस लाइन मेरिडियन. डिपेंडिंग अपॉन द मेरिडियन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बियरिंग. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर हम देख सकते हैं TN. तो TN हमारा क्या आता है, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि यहाँ से डिफ्लेक्शन है. एज यू कैन सी लोकल अट्रैक्शन की वजह से डिफ्लेक्शन है. तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, सिंपल सर, द डिफ्लेक्टेड पार्ट, दिस पार्ट इज मैग्नेटिक मेरिडियन and true meridian is the true north. Okay, and true bearing is what, the distance between the central part and the magnetic part, that is true bearing. And then magnetic bearing means the deflection between true north to magnetic north. तो ये हमारा इसको हम लोग किस में दर्शाते हैं, bearing में दर्शाते हैं. ठीक है, so let's move into the next slide. We will be seeing what is true bearing. So we all know the true bearing of a line is a horizontal angle between true meridian. So the true meridian is there, as you can see in the picture. क्या होता है, this is north, south, east and west. Okay, so this is central part, this is center part. Okay, so this is true north, but when we have magnet there will be a deflection. इसको हम लोग बोले MN, magnetic north, and MS, magnetic south pole. So the true bearing of line is horizontal angle between true meridian and the survey line. So what survey line measuring, ठीक है, तो whether it is facing the towards the north or towards the south, उससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, ट्रू बियरिंग फाइंड कर सकते हैं. What then next is magnetic bearing. तो magnetic bearing is the line of horizontal angle which line makes the magnetic north. ऐसी को ये इसको magnetic north है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, magnetic bearing. तो grid bearing क्या होता है, सिंपल, grid bearing क्या होता है, line of a horizontal angle which makes the line ग्रिड मेरिडियन. तो उसमें क्या रहता है, लैटिट्यूड ऐसे और लॉन्गिट्यूड ऐसे दिया रहता है. ठीक है, और एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड बियरिंग बोलते हैं. ठीक है, द आर्बिट्रेरी बियरिंग ऑफ लाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंगल विच मेक्स द लाइन आर्बिट्रेरी मेरिडियन. तो आर्बिट्रेरी बियरिंग भी इसमें हम लोग देखते हैं. तो टोटली 4 हमारा होता है. इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या दिया हुआ है हमारा. देखिएगा, ये हमारा अर्थ है, तो उसमें हमारा ट्रू नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ईस्ट है एंड वेस्ट है.
तो इसमें हमने क्या देखा, मैग्नेटिक मेरिडियन किसको बोलते हैं, जो हमारा डिफ्लेक्टेड होता है, डिक्लिनेशन होता है। ट्रू मेरिडियन जो ट्रू नॉर्थ को फेस करता है उसको ट्रू मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है, और उसको ट्रू बियरिंग भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है कि हमारा जो ट्रू नॉर्थ से जो डिक्लाइन होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, उसको मैग्नेटिक बियरिंग भी बोल सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंपास सर्वे। Next one is as you can see in this picture, true north and magnetic north. So the angle between true north and that line AB is given and denoted by alpha, and magnetic north AB is denoted by beta. So alpha is equal to true bearing from B to A and beta magnetic bearing from B to A. तो आप आसानी से इस पिक्चर से आप समझ सकते हो कि हम ट्रू बेयरिंग किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक बेयरिंग किसको बोलते हैं। जैसे कि यू कैन सी ए 3D व्यू, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कैसे है कि रिलेटिव बेयरिंग क्या है, ए ओ सी, लाइक दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ए ओ एंड सी। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव बेयरिंग बोलेंगे। ट्रू बेयरिंग क्या हो जाएगा, एन ओ सी, दिस इज नोन एज ए ट्रू बेयरिंग। ट्रू हेडिंग क्या हो जाएगा, एन ओ ए। सो दिस इज अ सिंपल, लाइक हम कैसे पता कर सकते हैं कि विच डायरेक्शन वी आर सिटिंग एंड कैसे हम उसका एंगल निकाल सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास, प्रिस्मेटिक कंपास, वी कैन फाइंड ऑल दैट। नेक्स्ट वन इज फोर बेयरिंग। तो व्हाट इज फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग? वी ऑल नो द बेयरिंग ऑफ लाइन मेथड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज, इन द सर्वे लाइन इज नोन एज ए फोर बेयरिंग। इफ यू नो द पॉइंट 1, ठीक है, ए पॉइंट 1 है, ए है, एंड यू नीड टू मेजर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ बी, फोर बेयरिंग, ओके, एंड इन दिस डायरेक्शन इट विल गो, ठीक है, और पॉइंट ए एंड, ठीक है, तो हम इसे आसानी से इसका एंगल हमको पता कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक बेयरिंग क्या हो गया, सिंपल इज दैट फ्रॉम बैक बेयरिंग द बेयरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड फ्रॉम मेजर्ड इन अ डायरेक्शन बैकवर्ड इन द डायरेक्शन। क्या होता है, यहाँ से आप इसको मेजर करोगे तो उससे हमारा क्या पता लग जाएगा, इसका एंगल का भी पता लग जाएगा, दैट इज नोन एज ए बैक बेयरिंग, ठीक है। तो हम होल सर्कल बेयरिंग, व्हाट इज होल सर्कल बेयरिंग, वी ऑल नो एज वी आर गोइंग टू सी होल सर्कल बेयरिंग, जो हमारा अर्थ है 4 क्वाड्रेंट में बांटा हुआ है, 0 to 360, क्या होता है, 0 to 360, 0 to 91st quadrant, 90 to 182nd quadrant, 190 to 270 third quadrant, 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल सर्कल बेयरिंग। तो उसमें क्या डिफरेंस बिटवीन फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग इज 180 डिग्री। सो बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस और माइनस 180 डिग्री। तो अगर हम पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करना है तो फोर बेयरिंग कितना होना चाहिए, शुड बी लेस देन 180 डिग्री एंड यूज नेगेटिव साइन व्हेन फोर बेयरिंग इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो उसमें हम लोग फोर बेयरिंग को इस्तेमाल करेंगे। तो हम सिंपल सी चीज़ को देखते हैं कि व्हाट इज़ फोर बेयरिंग। तो फोर बेयरिंग इज व्हाट, ए लाइन मेथड इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सर्वे लाइन, मीन्स कि पॉइंट ए से ही आप आगे की ओर बढ़ रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर बेयरिंग। एंड व्हाट इज बैक बेयरिंग, द बेयरिंग ऑफ लाइन मेथड इन डायरेक्शन बैकवर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस। जो सर्वे लाइन्स का था उससे बैकवर्ड डायरेक्शन में आप उसको करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बेयरिंग। सो क्या हो जाता है, द होल सर्कल बेयरिंग में द बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग एग्जैक्टली जो डिफरेंस कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। तो बैक बेयरिंग का जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ बी फोर बेयरिंग प्लस और माइनस 180 डिग्री। तो हम पॉजिटिव साइन कब इस्तेमाल करेंगे फोर बेयरिंग में, जब वो 180 डिग्री से लेस होगा, और अगर 180 डिग्री से मोर होगा तो उसमें नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग, ठीक है। तो अभी हमने ये सिर्फ देखा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू से होल सर्कल बेयरिंग, WCB, ठीक है। तो होल सर्कल बेयरिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्लॉकवाइज में है 0 to 360 में, 10, 20, 30 डिग्री ये सब हमारा दिया हुआ है होल सर्कल बेयरिंग में। तो ये किस में होता है, द बेयरिंग ऑफ लाइन मेथड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर से चलता है, राइट से चलता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसका जो वैल्यू होता है 0 to 360 डिग्री होता है, और उसमें कितना क्वाड्रेंट होता है, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, ओके। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, ओके, इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज 0 to 90 डिग्री in a clockwise direction, second is 90 to 180 degree, and third is 180 to 270 degree, and then 270 to 360 degree in fourth quadrant. So it moves in a clockwise direction. तो whole circle bearing उसको हम लोग बोलते हैं। Next we are going to see, ठीक है, कि what is quadrilateral bearing, ठीक है। तो what is quadrilateral bearing,
quadrature bearing means in this system the bearing of survey line are measured with respect to north line or a south line whichever the nearest to the given survey line are either in a clockwise direction और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उसको हम लोग अब देख सकते हैं होल सर्कल बियरिंग में। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है। नॉर्थ से शुरू हुआ है, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट जो एंगल हमारा जो डायगोनली काटा हुआ है तो θ1 से, ठीक है। देन θ2 से हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, θ3 से हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, θ4 से हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा क्या है, होल सर्कल बियरिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो आसानी से हम लोग क्वाड्रेटर बियरिंग सिस्टम पढ़ सकते हैं कि क्वाड्रेटर बियरिंग सिस्टम क्या होता है। वी ऑल नो क्वाड्रेटर बियरिंग मीन्स देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स फेसिंग। आप देखिएगा नॉर्थ से ईस्ट होगा तो नॉर्थ θe मीन्स नॉर्थ, θe मीन्स नॉर्थ पोल पे है लेकिन फेसिंग ईस्ट है, ओके। द नियरेस्ट पोल इज नॉर्थ। सिमिलरली साउथ ईस्ट मीन्स साउथ नियरेस्ट पोल है बट फेसिंग ईस्ट। सिमिलरली साउथ पोल है ऑन फेसिंग वेस्ट, तो साउथ θ3 वेस्ट। सिमिलरली वेस्ट नॉर्थ, θ4 वेस्ट। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम है जिसमें हमारा क्वाड्रेंट्स बांटा हुआ है फ्रॉम 0 to 360, ठीक है। तो हम नाउ वी विल सी व्हाट इज रेड्यूस बियरिंग। So first of all, what is reduced bearing? The whole circle bearing is converted into quadrature bearing. We all know whole circle bearing कितना है, 0 to 360, लेकिन उसको क्वाड्रेंट में बांट दिए हैं। कैसे? 4 क्वाड्रेंट में, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 एंड 270 to 360। सो 4 क्वाड्रेंट में बांट दिए हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, रेड्यूस्ड बियरिंग कहते हैं, ठीक है। इट वैल्यू स्लाइस फ्रॉम 0 to 90 बट द क्वाड्रेंट शुड बी मेंशन इन प्रॉपर डिज़ाइन, ओके। तो हम इस टेबल में देखते हैं, वो टेबल से सीखने की कोशिश करते हैं। होल सर्कल बियरिंग ऑफ एनी लाइंस, अगर हमारा होल सर्कल बियरिंग ऑफ एनी लाइन है, इसको ये टेबल को आप याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत इस्तेमाल होगा फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो होल सर्कल बियरिंग 0 to 90 होता है, जो किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उसका रूल्स फॉर कन्वर्सन क्या होता है, रेड्यूस बियरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बियरिंग। इस पर हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, RB इज इक्वल टू WCB, ठीक है। तो किसको फेस करेगा, क्वाड्रेंट कौन कौन के बीच में रहेगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड है 90 to 180, तो इट इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। उसका रूल्स फॉर कन्वर्सन क्या हो जाएगा, रेड्यूस बियरिंग इज इक्वल टू 180 माइनस WCB, दैट इज होल सर्कल बियरिंग। तो 180 क्या है, फ्रॉम 0 to 180 हो गया, और माइनस होल सर्कल बियरिंग, जितना वैल्यू दिया रहेगा उससे माइनस कर देंगे। और किस में रहता है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में। किसको नियरेस्ट पोल क्या है, साउथ है और फेसिंग ईस्ट। Next है 180 to 270 degree, which lies in third quadrant, and its conversion is RB is equal to WCB minus 180, okay। WCB minus 180, WCB क्या है, होल सर्कल बियरिंग। अब उसका हमारा जो नियरेस्ट पोल क्या है, साउथ है और फेसिंग क्या है, वेस्ट है, तो इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट इज 270 to 360, क्वाड्रेंट लाइस कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड द कन्वर्सन रूल्स इज RB इज इक्वल टू 360 माइनस WCB, जितना वैल्यू दे रहेगा 360 में माइनस कर दीजिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, वो हमारा जो वैल्यू आएगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेड्यूस बियरिंग है। तो इसको और अच्छे से सीखने के लिए हमने कुछ टेबल बनाया है, उसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। कि इन केस 1 इफ़ RB इज इन नॉर्थ ईस्ट, फॉर एग्जाम्पल इन केस 1 इफ़ द RB दैट इज़ रेड्यूस बियरिंग, अगर कुछ भी मान लीजिए 49 डिग्री, ठीक है, या 50 डिग्री या 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसका रूल्स क्या होगा, होल सर्कल बियरिंग का WCB इज इक्वल टू RB और RB इज इक्वल टू WCB, दोनों बराबर होगा। तो आसानी से आप प्लॉट कर सकते हैं। देयर इज नो चेंजेस ऑन द क्वाड्रेंट कौन रहेगा, 0 to 90। सिमिलरली यू कैन सी साउथ ईस्ट के लिए, साउथ वेस्ट के लिए एंड नॉर्थ वेस्ट के लिए द कन्वर्सन रूल्स इज WCB इज इक्वल टू 180 माइनस RB एंड WCB इज इक्वल टू RB प्लस 180। साउथ वेस्ट में होगा 180 to 270 में होगा माइनस, सॉरी, एंड WCB 360 माइनस RB। तो ये फार्मूला को इस्तेमाल करके वी कैन कन्वर्ट। सो अभी हम लोग कन्वर्सन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फ्यू एग्जांपल्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग WCB इनटू रेड्यूस्ड बियरिंग। सो देयर आर 3 क्वेश्चंस आर गिवन, 49 डिग्री टू 40 डिग्री एंड 130 डिग्री। तो सबसे पहले हमको समझने के लिए हमको पता होना चाहिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। वी ऑल नो, बिकॉज बनाएंगे हम लोग तो हमारा 0, ठीक है, 0 से ये क्लॉकवाइज में जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट,
ठीक है, अगर ऐसे क्लॉकवाइज में जाएगा होल सर्कल बेयरिंग। तो आप देखिएगा 49 के लिए हमने क्या कैसे सॉल्व करा है। 49 सिंस द लाइन फॉल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर द नियरेस्ट पोल इन द नॉर्थ पोल इज मेजर्ड एज नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट। सो नॉर्थ में है और टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो हम लोग कन्वर्सन रूल्स क्या था, आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी बी, तो सेम रहता है, इक्वल रहता है। तो देयरफॉर आर बी इज इक्वल टू नॉर्थ 49 डिग्री ईस्ट। तो आप समझ जाइएगा, अगर कोई भी एंगल जो लेस देन 90 है तो उसका जो कन्वर्सन रूल होगा आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी बी और डब्ल्यू सी बी इज इक्वल टू आर बी, दोनों बराबर है। तो जस्ट यू हैव टू मेंशन द डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इट इज फेसिंग। सो नॉर्थ 49 डिग्री ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 240। तो वी ऑल नो कि 240 किस में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उसका नियरेस्ट पोल क्या होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका फार्मूला क्या होता है, आर बी सी इक्वल टू डब्ल्यू सी बी माइनस 180। कितना दिया हुआ है 240, तो 240 माइनस 180 करेंगे तो हमारा 60 डिग्री आएगा। तो आर बी क्या हो जाएगा, साउथ 60 डिग्री वेस्ट, मीन्स कि साउथ इज द नियरेस्ट पोल और फेसिंग किसको कर रहा है, वेस्ट को कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये वेस्ट है हमारा, ये हमारा साउथ है। तो आसानी से हम जो होल सर्कल बियरिंग से 180 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री साउथ 60 डिग्री वेस्ट। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है 133 डिग्री। तो वी ऑल नो सिंस द लाइन फॉल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट, किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसका फार्मूला क्या होता है, आर बी इज इक्वल टू 180 माइनस डब्ल्यू सी बी और थीटा। तो डब्ल्यू आपको 180 आपको तो पता है, तो थीटा क्या हो जाता है 133 है, 133। तो उससे माइनस कर देंगे तो हमारा आर बी कितना आ जाएगा, नियरेस्ट पोल इज साउथ फेसिंग ईस्ट, सो 47 डिग्री ईस्ट, साउथ 47 डिग्री ईस्ट, द वैल्यू इज हियर। तो ये हमारा डायग्राम से आप समझ सकते हो। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, होल सर्कल बेयरिंग को हम लोग रेड्यूस बेयरिंग को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट द फॉलोइंग होल सर्कल बेयरिंग इनटू रेड्यूस, होल सर्कल बेयरिंग शुड बी कन्वर्टेड इनटू रेड्यूस बेयरिंग। तो हमारा पहला क्या है 190 डिग्री। तो 190 डिग्री है तो उसका फार्मूला वी ऑल नो आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी बी माइनस 180। तो वी ऑल नो डब्ल्यू सी बी कितना है 190 है। तो 190 माइनस 180 करेंगे तो हमारा आर बी कितना आ जाएगा, साउथ 10 डिग्री वेस्ट। अब जान लीजिए कैसे साउथ 10 डिग्री वेस्ट आ जाएगा। वी ऑल नो, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, हमारा 190 किस में कंसिडर करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में करता है, ओके। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का डब्ल्यू सी बी 190 माइनस 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो हमारा साउथ में क्या हो जाएगा, साउथ 10 डिग्री वेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंगल साउथ 10 डिग्री वेस्ट। तो इससे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट इज 260 डिग्री। तो 260 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यू ऑल नो इट्स ऑल्सो इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेम फार्मूला डब्ल्यू सी बी माइनस 180। तो 260 माइनस 180 इज इक्वल टू 80 डिग्री वेस्ट। तो हमारा आर बी यू से निकल जा रहा है, ठीक है। व्हेन यू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 315 विच लाइस इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होता है, आर बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट जो होल सर्कल बेयरिंग माइनस 360 माइनस डब्ल्यू सी बी, ठीक है। तो 360 के कितना आता है, होल सर्कल होता है पूरा। तो 360 माइनस जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है 315, उसको माइनस कर देंगे तो नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि हम आसानी से डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास, ओके। सो समरी ऑफ दिस lecture is we have studied our principle of compass survey, then we have studied about traversing, then we have studied our different types of meridian, then different types of bearing, then we have studied what is whole circle bearing, what is fore bearing, back bearing, then we have studied our quadrilateral bearing system, then we have solved some numerical related to reduced bearing and whole circle bearing, and we have find some angles related from bearing. So ये सारा चीज़ को हमने इस टॉपिक में देखा है, okay. When you will watch this video, watch it thoroughly, because if you will have any doubt we will be solving in video online classes also, ठीक है। तो आज के लिए for today is enough, we'll meet you soon. तो I have referred this books also, okay. So the books are N.N. Basak, Dr. B.C. Punamia, S.K. Hussain, S.K. Dugal, okay. And thank you, good day.